انہیں گھر چاہیے، بڑی بزنس ہو اور عیش و آرام کی ساری چیزیں ہوں، مگر ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ ان چیزوں کے ملنے پر بھی ہمیں جو اصل میں چاہیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور وہ ہے خوشی۔ تو ہم ان سب چیزوں کو خریدتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ ہمیں سکون دیں گی، مگر یہ غلط ہے۔ پہلے ہمیں اندرونی خوشی، ذہنی سکون اور اندرونی روح کو تلاش کرنا ہوگا، اور پھر یہ ساری چیزیں ہمیں سکون دے پائیں گی۔ میرے لیے راز کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اپنی تخلیق کے خالق ہیں، اور ہر وہ خواہش جسے ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں ہماری زندگی میں ظاہر ہوگی۔ تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کے خیالات، آپ کے احساسات کیا ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہوں گے۔ ایک دن میں ایک آرٹ ڈائریکٹر کے اسٹوڈیو گئی۔ وہ ایک تخلیقی انسان تھا اور اس کے کام میں خوبصورتی جھلکتی تھی، لیکن ایک چیز عجیب تھی، اس کے کمرے کے ہر کونے میں ایک ہی لڑکی کی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، یہ سب ایک ہی چہرہ کیوں؟ کوئی خاص وجہ؟ وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، یہ میرا آئیڈیل ہے، میں نے خود اسے تخلیق کیا ہے۔ میں نے کہا، دلچسپ ہے، مگر کیا تم نے کبھی سوچا کہ تم حقیقت میں کیا چاہتے ہو؟ صرف ایک خوبصورت تصور یا ایک حقیقی رشتہ جس میں سمجھ اور سکون ہو؟ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، شاید میں بس ایک کنیکشن چاہتا ہوں، مگر کبھی چیزیں سیریس نہیں ہو پاتی۔ میں نے مشورہ دیا، پھر شاید تمہیں اپنے فوکس کو بدلنا ہوگا۔ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں، بلکہ ایک متوازن رشتہ تصور کرو، جہاں احترام، اعتماد اور دوستی ہو۔ اس نے میری بات کو سنجیدگی سے لیا۔ اس نے اپنی پینٹنگز بدل دی۔ اب وہ مختلف جذبات اور ایک حقیقی تعلق کی جھلک دکھا رہی تھی، نہ کہ صرف ایک پرفیکٹ چہرہ۔ چند مہینوں بعد ہم دوبارہ ملے۔ اس کے انداز میں سکون تھا۔ اس نے بتایا، اب میں کسی کو بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں، جلد بازی نہیں کرتا، اور ہاں، اب میری زندگی میں کوئی خاص ہے۔ ایک سال بعد اس نے ایک سادہ اور خوبصورت تقریب میں اپنی پارٹنر کے ساتھ زندگی شروع کر دی۔ میں نے سوچا، کبھی کبھی ہم ایک پرفیکٹ امیج کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ اصل خوشی ایک ریئل کنیکشن میں ہوتی ہے، جہاں دونوں لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے اور قبول کرتے ہیں۔ یہ خواہش برسوں سے اس کے اندر تھی، مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ اس کی خواہش سچ نہیں ہو پائی، کیونکہ اس کے بیرونی ماحول میں، یعنی اس کے گھر میں اور اس کی خواہشات کے بیچ ہمیشہ ایک تضاد رہتا تھا، اور یہی رکاوٹ تھی۔ اب آپ ہی راز جان گئے ہیں، تو آزمانا شروع کیجیے۔ آپ کے رشتوں میں آپ کو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رشتے میں شامل کون ہو رہا ہے۔ اپنے ساتھی کو نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کسی دوسرے سے کیسے امید کریں گے کہ اسے آپ کی صحبت اچھی لگے گی، جب آپ کو خود کی صحبت اچھی نہیں لگتی؟ تو کشش کا اصول یا راز اسی بات کو اپنی زندگی میں لانے کے بارے میں ہے۔ اسے آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ ایک سوال ہے جس پر آپ غور فرمائیں کہ آپ اپنے آپ سے ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں جیسا آپ دوسروں سے اپنے لیے امید کرتے ہیں۔ آپ اپنا حل خود بنیں۔ یہ نہیں کہ تمہیں میرا قرض ادا کرنا ہے، تمہیں زیادہ دینا ہوگا۔ اس کے بجائے خود کو ہی زیادہ دیجیے۔ اپنے آپ کو دینے کے لیے وقت نکالیے، گویا اپنے آپ کو اتنا بھر رہے ہو کہ جب وہ چھلکے تو دوسروں کو دے سکے۔ امید کرتی کہ وہ مجھے خوبصورت کہے، کیونکہ میں نے اپنی خوبصورتی نہیں دیکھی۔ جب میں بڑی ہو رہی تھی تو میرے فیورٹ ہیروز یا یوں کہے ہیروئنز تھیں۔ بائیونک وومن، ونڈر وومن یا چارلیز اینجلز، وہ سب شاندار دکھتی تھیں، پر میں نہیں۔ تب تک نہیں جب تک میں خود کو پسند نہ کرنے لگی۔ میرا رنگ، میرا چہرہ، میری نزاکت، میرے گھنگریالے بال، اور جب میں نے اپنی خوبصورتی پر ناز کرنا شروع کیا، تب باقی سب لوگ بھی مجھے پسند کرنے لگ گئے۔ آپ کے اندر ایک زبردست خصوصیت ہے۔ پچھلے 44 برسوں سے میں خود کو پرکھ رہا ہوں۔ میں خود کو چومنا چاہتا ہوں۔
आपको खुद से मोहब्बत करना होगा। मैं गुरूर की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं आप सिर्फ अपने आप को इज्जत दें। खुद से मोहब्बत करेंगे तभी दूसरों से मोहब्बत होगी। रिश्तों में हम दूसरों के बारे में शिकायत करने के आदी हो जाते हैं। दफ्तर में लोगों के साथ काम करना मुश्किल है। मेरे शौहर मुझे पागल कर देते हैं। मेरे बच्चे बहुत सुस्त हैं। हमेशा दूसरों की बात होती है। मगर रिश्तों की कामयाबी के लिए हमें ये देखना होगा कि दूसरों में क्या अच्छाई है, ना कि उनमें क्या बुराई है। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें सिर्फ बुरा ही दिखता है। आपके रिश्तों में भले ही कितनी भी तलखी हो, आपस में ना बनती हो, रोज रोज झगड़े होते हों, तुम क्या समझते हो? अपने आप को जो करना है कर लो। जाओ, इन रिश्तों को भी आप ठीक कर सकते हैं। बस एक कागज लीजिए और अगले 30 दिनों तक रोज उस शख्स के बारे में वो सब बातें लिखें जो आपको अच्छी लगती हैं। इन वजूहात के बारे में सोचें कि आप उसे क्यों मोहब्बत करते हैं। आपको उसका मजाक करना पसंद है, उसकी मदद करना पसंद है, और आप पाएंगे कि आपको उसकी खूबियां बहुत पसंद हैं और आप उसकी तारीफ करेंगे। तो बदले में आपको भी वही मिलेगा और मसाइल खत्म हो जाएंगे। हम दूसरों को काबू में नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। मान लीजिए आपके घर कोई आता है जिसका मिजाज खराब है और आपका मिजाज बहुत अच्छा है, तो आप खुद को कहीं और पाएंगे। अपनी ही खुशनुमा दुनिया में कशिश के उसूल के जरिए अपनी खुशी हम खुद पा लेते हैं। कई बार आप खुद को खुश रखने का मौका किसी और को दे देते हैं, पर वो आपको खुश नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी खुशियों के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अपने आप को खुश रखना आपका काम है। आपके वालिदैन, बेटा, शौहर या जो भी हो, आपकी खुशियों की चाबी किसी और के पास नहीं हो सकती। आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। ये जान लेना जरूरी है कि हमारा जिस्म वाकई हमारे ख्यालात का नतीजा है। तब भी साइंस में आज हम ये जान रहे हैं कि किस हद तक हमारे ख्यालात और एहसासात हमारे जिस्म के बैरूनी रूप, उसकी बनावट और उसकी अंदरूनी अमल को मुतय्यन करते हैं। इलाज में हम प्लेसीबो के असर को अच्छी तरह से जानते हैं। प्लेसीबो एक ऐसी चीज है जिसमें जिस्म पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि मीठी गोली या कुछ और। आप मरीज से कहते हैं कि ये दवा भी बहुत असरदार है, और होता यह है कि प्लेसीबो भी इतनी ही असरदार साबित होती है जितनी कि वो दवाई जो बीमारी के लिए दी जाती है। तो हमने ये जाना कि इलाज में इन्नी दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है, कभी कभार दवाओं से भी बड़ा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स बीमार है और अगर उसके पास इख्तियार है कि वो दवा लेने के बजाय अपने दिमाग में इस मर्ज की जड़ को तलाश करे, तो उसे तलाश करना चाहिए। अगर हालत ऐसी है कि दवा ना लेने से उसकी मौत भी हो सकती है, तब तो जाहिर है दवा लेनी ही चाहिए, और साथ ही उस मर्ज की जड़ को तलाश करना जारी रखना चाहिए। दवा को नकारना नहीं चाहिए। हर तरह के इलाज की अपनी एक जगह है। ये सेरिश्ती, सुकून, सेहत और अच्छे एहसास की बेहतरीन तख्लीक है। जब आप खुले दिल से सेरिश्ती की खुशहाली को महसूस करते हैं, तब आप खुशी और लुत्फ की खुशगवार तजुर्बा करेंगे। उन सब चीज़ों का लुत्फ उठाएं जो सेरिश्ती ने आपके लिए बनाई हैं। दौलत, अच्छी सेहत, अच्छा मिजाज। पर जब आप बुरे ख्यालात से गिर जाते हैं, तब आपको तकलीफ का एहसास होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। आप महसूस करेंगे एक एक दिन कितना तकलीफदेह होता है। लाइलाज बीमारी यानी कि टर्मिनल बीमारी मर्ज पर गौर फरमाएं। डिसीज, इसका मतलब हुआ एक ऐसा जिस्म जो तकलीफ में है। हमारे पास चारों तरफ हजारों बीमारियां और उनके अलामात हैं। ये सिर्फ एक कमजोर कड़ी है। ये सब के सब एक ही बात के नताइज हैं, वो है तनाव। जब आप किसी जंजीर पर तनाव डालते हैं, किसी निजाम पर तनाव डालते हैं, तो वो कड़ी टूट जाती है। हमारा जिस्म दिखाता है कि ये मर्ज हमने ही पैदा किए हैं।
ये बताने के लिए कि हमारे नजरिए में अदम तवाजुन है, हम शुक्रगुजार नहीं हैं, तो जिस्म के अमराज के अलामात हमारे लिए इतने बुरे भी नहीं होते। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि जब इंसान के जिस्म में कोई बीमारी या जिंदगी में कोई किसी तरह की तकलीफ हो जाए तो क्या फिक्र की ताकत से उसे ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। 23 नवंबर को मुझे बताया गया कि मुझे सीना का कैंसर हो गया है। अपनी अकीदत के जरिए अपने दिल में मैंने ये मान लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। दिन के दौरान हर वक्त मैं कहती रही, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। उसे दोहराती रही, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने मान लिया था कि कैंसर मेरे जिस्म में था ही नहीं। खुद को ठीक करने के लिए मैं हंसी मिजाह कॉमेडी वाली फिल्में देखा करती थी। हम लोग बैठकर बस हंसा करते थे। अपनी जिंदगी में तनाव लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि जब आप अपने आप को ठीक कर रहे हो तब तनाव कितना खौफनाक हो सकता है। नवंबर 23 को मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है और उसे ठीक होने में मुझे सिर्फ 1.5 से 3 माह ही लगे, और वो भी बगैर रेडिएशन और कीमोथेरेपी के। हमारे जिस्म में एक बुनियादी खुसूसियत है जिससे जिस्म अपना इलाज खुद करता है। आपको जख्म हुआ है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को खत्म करके उसे ठीक कर देगी। हमारी इम्यून सिस्टम इसी काम के लिए बनी है। डिसीज यानी बीमारी किसी ऐसे जिस्म में नहीं रह सकती जो तनो जान से सेहतमंद है। आपका जिस्म हर पल करोड़ों खुलियात को खत्म कर रहा है और करोड़ों नई खुलियात बना रहा है। असल में हमारे जिस्म के आज़ा हर रोज बदलते हैं। कुछ आज़ा को चंद माह लगते हैं तो कुछ को 2-1 साल, मगर चंद सालों में हमारा एक बिल्कुल ही नया जिस्म बन जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप इसी पर सोच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बीमार खुलियात पैदा करेंगे। अपने आप को बिल्कुल सेहतमंद जिस्म में देखें। अपनी बीमारी को डॉक्टर के हवाले कर दें। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। मान लीजिए दोनों को एक बीमारी है, मगर एक का ध्यान खुशी पर होता है और वो इम्कानात में जीते हैं, वो उम्मीदों में जीते हैं। उनका ध्यान उन सब वजूहात पर होता है जिनसे वो हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरे किस्म के लोग, बीमारी वही है मगर उनका ध्यान बीमारी पर होता है, उनका ध्यान दर्द पर होता है और इससे आई मुसीबत पर होता है। जब किसी शख्स का पूरा ध्यान उसकी बीमारी पर होता है तो वो उसे मुस्तकिल बना देते हैं। बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उसका ध्यान ठीक होने पर नहीं जाता, क्योंकि यही अकुर्शत का उसूल है। खुशगवार एहसास जिस्म में यकीनन खुशगवार तब्दीली लाते हैं। एक खुशगवार सेहतमंद जिस्म बुरे एहसास और तनाव हमारे जिस्म को खोखला करते हैं और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे ख्यालात और एहसासात मुसलसल हमारे जिस्म पर काम करते हैं, उसे मुनज़्ज़म करते हैं और उसके आज़ा को बना रह जिस्म से जिस्मानी तनाव निकाल दे तो जिस्म वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं। आंखों की रोशनी तक वापस आती देखी है। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे दिमाग में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। 10 मार्च 1981 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। मेरा तैयारा क्रैश हो गया था। मुझे फॉलिज की हालत में अस्पताल लाया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी। मेरे पहले और दूसरे स्वाकॉल वर्टिब्रेट टूट चुके थे। मेरी निगलने की ताकत खत्म हो गई थी। मैं न खा सकता था न पी सकता था। मेरे फेफड़े खराब हो गए थे तो मैं सांस नहीं ले पाता था। मैं सिर्फ पलकें झपका सकता था।
डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भरी बेजान सा रहूंगा, बस पलकें ही झपकाऊंगा। ये उनकी सोच थी। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा, जो उस अस्पताल से चलकर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था, और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा, मेरे फेफड़े खराब हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा। लेकिन अंदर से एक आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे मकसद और मेरे अज़्म को मुझसे अलग करती। मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर निकलूंगा। यही मेरा मकसद था। 8 महीने बाद मैं खुद अपने 2 पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। उन्होंने कहा था, ये नामुमकिन है। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो लोग जो उस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो किसी तकलीफ में हैं, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का खुलासा बताना हो और अगर मुझे उनकी जिंदगी का खुलासा बताना हो, तो मैं 7 अल्फाज में कहूंगा, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। जब भी लोग अपनी पसंद की कोई भी चीज देखते हैं तो कहते हैं, हाँ ये अच्छा है, मुझे ये चाहिए। लेकिन जब वो उन चीजों को देखते हैं जो वो नहीं चाहते, तब भी वो उसे उतनी ही तवानाई देते हैं, ये सोचते हुए कि वो उसे दबा देंगे, उसे खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। हमारे माशरे में हम लड़कर मुतमईन हो जाते हैं, चाहे वो लड़ाई कैंसर के खिलाफ हो, गुर्बत के खिलाफ हो, मंशियात के खिलाफ हो, दहशतगर्दी के खिलाफ या फिर तशद्दुद के खिलाफ हो। हम हर उस चीज से लड़ते हैं जिसे हम नहीं चाहते। जिस चीज पर भी हम ध्यान लगाते हैं उसे बनाते हैं। मान लीजिए हम अपना गुस्सा जंग पर, झगड़े पर या तकलीफ पर निकाल रहे हैं, तो हम उसमें अपनी तवानाई शामिल कर रहे हैं, खुद को उसमें झोंक रहे हैं। इससे सिर्फ मुज़ाहिमत पैदा होती है जिसका आप मुखालफत करते हैं, उसे आप इस्तिकामत देते हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप किसी चीज़ की मुखालफत करते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इससे अच्छा नहीं लगता। तो आप इसी एहसास को जाहिर करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, और इसी वजह से बार बार आपकी तरफ आता है। जंग की मुखालफत से जंग और बढ़ेगी, मंशियात की मुखालफत से और भी ज़्यादा मंशियात पैदा होंगी, क्योंकि हमारा फोकस उस पर है जिसे हम नहीं चाहते। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हम मसाइल में अपनी पूरी तवानाई झोंक दें, बजाय इसके कि हमारा ध्यान यकीन, मोहब्बत, खुशी, खुशहाली, तालीम और अमन पर हो। मदर रेज़ा ने कहा था, मैं कभी जंग मुखालिफ रैली में नहीं जाऊंगी। अगर अमन की रैली हो तो मुझे बुलाइए। उन्होंने राज को जाना और देखे दुनिया को क्या दे कर गई। तो अगर आप जंग मुखालिफ हैं तो अमन का पहलू लें। अगर आप भूख मुखालिफ हैं तो अन्न का पहलू लें, जिनके पास खाने की कमी नहीं। अगर आप किसी खास रहनुमा के मुखालिफ हैं तो उसके मुखालिफ का पहलू लें। अक्सर इंतखाबात में वही रहनुमा जीतता है जिसका लोग मुखालफत करते हैं, क्योंकि सबकी तवानाई, सबका ध्यान उसकी तरफ है। तो आपका फोकस उस पर हो जिसे आप चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते उसे देखने में बुरा नहीं है, सिर्फ मवाजना करने के लिए कि ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हकीकत यही है कि जो आप नहीं चाहते उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं और देखते हैं, और ऐसा करके आप उसी की तरफ तख्लीक करते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, जेम्स, मुझे मालूमात तो होनी चाहिए ना? ज़रूर होनी चाहिए, मगर उसकी भरमार नहीं होनी चाहिए।
میرا ماننا ہے کہ جب آپ کے دل کی آواز بیرونی نظریات اور مشورے سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو آپ اپنی زندگی کے مالک بن جاتے ہیں۔ پہلے مستحکم ہونا سیکھیں اور آپ جو نہیں چاہتے اس سے اپنا دھیان ہٹا لیں اور اس سے جڑی اپنی تمام احساسات سے بھی۔ پھر اپنا سارا فوکس اس پر لے آئیں جو آپ چاہتے ہیں۔ توانائی وہی بہتی ہے جہاں دھیان جاتا ہے۔ دنیا کو بدلنا آپ کا کام نہیں ہے، نہ ہی لوگوں کو بدلنا۔ آپ کا کام ہے کائنات کے بہاؤ کے ساتھ چلنا اور اس دنیا میں اپنی زندگی کا پورا لطف اٹھانا۔ ایک سوال جو شاید کسی کے دماغ میں گھوم رہا ہو، چاہے وہ سوال آپ کے دماغ میں نہ آیا ہو، اور وہ یہ کہ اگر سب راز کا استعمال کرتے ہیں اور سب کائنات کو مین کارڈ کی طرح سمجھتے ہیں تو کیا ساری چیزیں ختم نہیں ہو جائیں گی؟ کیا سب اس خزانے کو لوٹنے کے لیے دوڑ نہیں پڑیں گے؟ اس راز کی تعلیمات کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ہم سب کے لیے کافی سے بہت زیادہ ہے۔ ایک جھوٹ پھیلا ہے جو انسانیت کے دماغ میں کسی وائرس کی طرح کام کرتا ہے، اور وہ جھوٹ یہ ہے کہ دنیا میں کافی نہیں۔ اس میں کمی ہے، اس کی حدود ہیں، اور وہ ہم سب کے لیے کافی نہیں ہیں، اور اسی جھوٹ کی وجہ سے لوگ جیتے ہیں، خوف، لالچ، کنجوسی میں، اور یہی خوف، لالچ، کنجوسی اور کمی کے خیالات ان کا احساس بن جاتے ہیں۔ دنیا تو جیسے کسی برے خواب میں جی رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اچھائی کافی سے کہیں زیادہ ہے، پر آپ سے کہیں زیادہ تخلیقی خیالات ہیں، کہیں زیادہ طاقت ہے، کہیں زیادہ محبت ہے، کہیں سے زیادہ خوشی ہے، اور یہ سب چیزیں ایک ایسے دماغ کی پیداوار ہیں جو جانتا ہے اپنی لامحدود فطرت کے بارے میں۔ ہر عظیم استاد جو زمین پر پیدا ہوا ہے، اس نے یہی کہا کہ زندگی کو مکمل خوشی اور خوشحالی میں جینا چاہیے۔ تو جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ وسائل کم ہو رہے ہیں تو ہم اپنے لیے نئے وسائل تلاش کر لیتے ہیں۔ ہم ایسا سوچنے لگتے ہیں کہ کمی ہے کیونکہ ہمارے چاروں طرف جو کچھ بھی ہے ہمارے دل نہیں دیکھ پاتا۔ جب ہر انسان دل سے جی رہا ہے اور جو چاہتا ہے اسے پانے کی کوشش کرتا ہے تو سب کی چاہت ایک جیسی نہیں ہوتی، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ ہم سب کو BMW نہیں چاہیے، ہم سب کو ایک ہی شخص نہیں چاہیے، ہم سب کو ایک ہی تجربہ نہیں چاہیے، ہم سب کو ایک جیسے کپڑے نہیں چاہیے۔ ہم سب کی پسند الگ ہیں، کسی کے لیے کوئی کمی نہیں۔ اگر اس پر بھروسہ ہے اسے دیکھ سکتے ہیں، اس پر عمل کریں، اس کا اثر دکھائی دے گا۔ یہی سچ ہے۔ وہ سب جو آپ چاہتے ہیں، خوشیاں، محبت، سکون، خوشحالی، سب کچھ یہی ہے، آپ کے انتظار میں کہ آپ انہیں اپنا لیں۔ بس اس کے لیے آپ کو بھوک ہونی چاہیے، اس کی چاہت ہونی چاہیے، آپ کو ارادہ بنانا ہوگا، اور جب آپ ارادہ اسے پانے کے لیے عزم کر لیتے ہیں تو آپ اسے حاصل کر ہی لیتے ہیں۔ اپنے چاروں طرف کی خوبصورت دنیا کو پہچانیے، اس کے لیے دعا کیجیے، اس کی تعریف کیجیے، اور اگر حالات ویسے نہیں ہیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں تو اپنی توانائی شکایت کرنے میں ضائع مت کیجیے۔ اپنی خوشیاں آپ جتنی بانٹیں گے اس سے دگنی خوشیاں آپ کو ملیں گی۔ تاریخ کے بہت سے رہنما اسے نہیں سمجھ پائے اور بانٹنے سے چوک گئے۔ ہمارے لیے یہ وقت تاریخ کا سب سے بہترین وقت ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ علم حاصل کرنے کی طاقت ہماری انگلیوں پر ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں۔ اپنے چاروں طرف دیکھیں، اپنے جسم کو ہی لے لیجئے۔ جو دکھتا ہے وہ تو صرف سوئی کی نوک ہے۔ اچھا، ایک کام کیجئے، ذرا اپنے ہاتھ پر نظر ڈالیں۔ آپ کا ہاتھ ٹھوس دکھتا ہے، مگر وہ ہے نہیں۔ اگر آپ اسے مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو ارتعاش کرتی توانائی دکھائی دے گی۔ ہر چیز ایک ہی چیز سے بنی ہے، چاہے وہ آپ کا ہاتھ ہو، چاہے وہ سمندر ہو یا کوئی ستارہ ہو۔ یہاں پر ہر چیز صرف توانائی ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے ہماری کائنات تو ہے ہی، ہمارا سورج کا نظام ہے۔ سورج کے نظام میں ہمارے سیارے ہیں، اور سیارے میں ہم انسان۔ انسان کے جسم کے اندر ہیں کئی اعضاء۔ اعضاء میں ہیں خلیے، اعضاء، میلیکیول، اور آخر میں ہے توانائی۔ تو کسی بھی طرح سے بات کر لیں، لیکن ایک بات تو طے ہے، کائنات میں ہر چیز توانائی ہے۔ آپ کسی بھی شہر میں ہوں، آپ کے جسم میں کافی طاقت ہے، زبردست طاقت جو سارے شہر کو پورے ہفتے تک روشن کر سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو یہ محدود جسم مان لیتے ہیں، مگر آپ محدود جسم نہیں ہیں۔
माइक्रोस्कोप के नीचे आप एक तवानाई का मैदान हैं। तवानाई के बारे में हम जो जानते हैं वो यही है। आप किसी क्वांटम फिजिसिस्ट से जाकर पूछें, ये दुनिया किससे बनी? इसका जवाब होगा तवानाई से। तो तवानाई क्या होती है? इसे ना तो बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता है। ये हमेशा से थी, रही है और हमेशा रहेगी। ये किसी रूप में आती है, रूप से गुजरती है और बाहर निकलती है। बहुत अच्छे। अब किसी रूहानी शख्स के पास जाकर पूछें, ये कायनात किसने बनाई? इसका जवाब होगा खुदा। खुदा क्या है? वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। न इसे बनाया जा सकता है, न खत्म किया जा सकता है। वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। हर रूप में आता है। देखें, आपको वजाहत एक जैसी मिलेगी, सिर्फ अल्फाज मुख्तलिफ होंगे। तो अगर आपको लगता है आप सिर्फ सख्त गोश्त के इंसान हैं तो दोबारा सोचें। आप में एक रूह है। आप एक तवानाई का मैदान हैं जो एक बड़े तवानाई के मैदान में काम कर रहा है। हम सब जुड़े हुए हैं, बस हमें दिखता नहीं। ना कुछ बाहर है और ना कुछ यहां है। कायनात में हर चीज जुड़ी हुई है, सब एक ही तवानाई का मैदान है। ज्यादातर हमारा ध्यान जिस्मानी साख्त की तरफ लगा रहता है, पर यह जिस्म तो रूह का सिर्फ एक लिबास है। रूह अम्र है और आप लामहदूद जिंदगी हैं। आप तवानाई का माखिज हैं। आप इंसान की शक्ल में पैदा हुए, खुदा हैं जिसमें कोई कमी नहीं। जैसा कि कुतुब में कहा गया है, हम सब खुदा की ही तस्वीर हैं। यानी हम एक जरिया हैं जिससे पूरी कायनात अपने आप को महसूस करती है। हम कह सकते हैं कि हम लामहदूद मैदान हैं। जाहिर होने वाली मुमकिनात के ये सब हकायक हैं। हर अजीम रिवायत ने आपको बताया है कि आपको तख्लीकी माखिज की तस्वीर में ही बनाया गया है। इसका मतलब है कि आपके अंदर अपनी दुनिया बनाने की खुदाई ताकत है और आप ऐसा कर सकते हैं। शायद आज तक आपने जो भी चीजें बनाई हैं वो खूबसूरत हैं और आपके लायक हैं, या शायद आपने नहीं बनाई हो। जो भी हो, आप इस पर गौर करें कि आपकी जिंदगी में जो भी नतायज आए हैं, क्या वो वही हैं जो आप चाहते हैं और आपके लायक? अगर वो आपके लायक नहीं हैं, तो उन्हें बदलने का सही वक्त कब आएगा? क्योंकि ऐसा करने के लिए आप में वो ताकत, जिंदगी ने उनके साथ धोखा किया है। वो माजी की तरफ इशारा करते हैं कि किस तरह उनके माँ बाप ने उनके साथ बुरा सलूक किया या उनका खानदान अच्छा नहीं था। और यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ज्यादातर माहिर नफ्सियात मानते हैं कि तकरीबन 85% खानदानों में लड़ाइयां झगड़े होते हैं और आप कोई अलग नहीं हैं। मेरे माँ बाप को शराब की लत थी। मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दी जब मैं 6 साल का था। 13 से 18 साल के दरमियान में गली का बदमाश हुआ करता था। मेरे साथ एक मोहलिक मोटरसाइकिल हादसा हुआ। एक बार जब मैं डलस में था तो बेगार था और ह्यूस्टन में मैं 15 सालों तक गुर्बत में रहा। जब मैं छोटा था तो कुछ भी नहीं सीख पाता था। मुझे ना सीख पाने की बीमारी थी। मुझसे कहा गया कि मैं पढ़ लिख नहीं पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगा, अलग हो जाऊंगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा मतलब हर किसी की कहानी तकरीबन एक जैसी है। अब आप कहेंगे तो क्या हुआ? पर असल सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे? आपका इंतखाब क्या होगा? या तो आप इसी माजी में उलझे रहें या अपनी चाहत पर फोकस करें। और जब आप वही सोचते हैं जिसकी चाहत हो, तो उन चाही चीज का वजूद खत्म हो जाता है। चाहत जब बढ़ती है तो उन चाहा गायब हो जाता है। आप ही अपने जिंदगी के शलबकार हैं। आप ही मुसन्निफ हैं। अपनी कहानी खुद लिखें। कलम आपके हाथ में है और उसका नतीजा वही होगा जो आप चाहेंगे। कशिश के उसूल की खूबसूरती ये है कि आप जहां हैं वहां से उसे शुरू कर सकते हैं, आगाज कर सकते हैं। सोचने से, दिल से सोचेंगे तो आप अपने अंदर एक मौसीकी, एक खुशी का जज्बा पैदा होता हुआ पाएंगे और उसूल उसमें सर मिलाना शुरू कर देगा। तो अब आपके ईमान में तब्दीली आई है। जैसे कायनात में काफ़ी से ज़्यादा है, या ईमान होगा कि मेरे लिए सब बिल्कुल ठीक है, या आपका ईमान होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, जवान हो रहा हूँ। हम जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। कशिश के उसूल का इस्तेमाल करके आप खुद को पूरी तरह आज़ाद कर सकते हैं। नस्ली उयूब से, सकाफ़ती मौरूसियात से, समाजी रिवायात से, और पूरी तरह साबित कर सकते हैं कि आपके अंदर की ताकत बाकी ताकतों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छी है, मगर मैं नहीं कर सकता, या वो मुझे करने नहीं देगी,
या ये मुझे करने नहीं देगा, या ये करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, या ये करने के लिए मुझ में ताकत नहीं, या मैं अमीर नहीं हूं, मैं नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं कुछ भी नहीं। आपके हर एक नहीं को आपने बनाया है। आप कर सकते या नहीं कर सकते, दोनों हालतों में आप सही हैं कि कोई हद है? जी बिल्कुल नहीं। हम इंसानों की ताकत लामहदूद है। हमारी कोई भी हद नहीं। वो सलाहियतें, वो हुनर और वो तोहफा, वो ताकत जो इस ज़मीन पर मौजूद हर इंसान के अंदर है, वो लामहदूद है। खुदा ने किसी ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखा कि आपकी ज़िंदगी में आपका मकसद, आपका हदफ क्या है। ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर लिखा हो। नील डोनाल्ड वॉल्श एक हैंडसम आदमी जो 21वीं सदी की शुरुआत में रहा, जिसने कॉलन और उसके बाद सब खाली। अब ये समझने के लिए कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ इस ब्लैक बोर्ड को ढूंढना होगा ताकि पता चले कि खुदा मुझसे क्या करवाना चाहता है। अगर ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं, तो आपका मकसद वही है जो आप तय करते हैं। आपका हदफ वही है जो आप तय करते हैं। आपकी ज़िंदगी वैसी ही होगी जैसा आप अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, ना आज ना कल। इसे समझने में मुझे बरसों लग गए, क्योंकि मैं इस ख्याल के साथ बड़ा हुआ कि कोई ऐसा काम है जो मुझे करना चाहिए, और अगर मैं वो नहीं कर रहा तो मुझे लगता कि खुदा मुझसे बहुत नाराज़ होगा। जब मुझे ये बात समझ में आई कि मुझे सिर्फ खुशी का एहसास करना है, तब मैं सिर्फ वही काम करने लगा जो मुझे खुशी देते। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसे करने में मज़ा नहीं, उसे मत करो। खुशी, मोहब्बत, आज़ादी, मुस्कुराहट, बस यही तो है। अगर आपने 1 घंटा बैठकर ध्यान लगाया और खुशी का एहसास किया, तो वही करें। अगर आपको वड़ा पाव खाने से खुशी मिलती है, तो वही खाएं। जब मैं अपनी बिल्ली को लाता हूं या सैर पर जाता हूं, तो मुझे खुशी का एहसास होता है। तो मैं अपने आप को हमेशा इसी हालत में रखना चाहता हूं, और इससे जो मैं चाहता हूं, सिर्फ मुझे इरादा करना होता है, और वो चीज़ जाहिर हो जाती है। दिल की खुशी ही एक तरह से हमारी कामयाबी का ईंधन है। जो भी चीज़ आपको अच्छा महसूस कराती है, वो और ज़्यादा आपकी तरफ खिंची चली आती है। उस वक्त आप उसे सुन रहे हैं, क्योंकि आपने ही उसे अपनी तरफ खींचा है। ये आपकी ही मर्जी है कि आप उसे अपनाएं और अमल में लाएं। अच्छा महसूस होता है तो अच्छा है। अगर अच्छा महसूस नहीं होता, तो फिर उसे जाने दीजिए। वो चीज तलाश करें जो आपको अच्छा लगे, जो आपके दिल को भरपूर खुशी दे। अपने लुत्फ के पीछे जाए, और कायनात आपके लिए वो दरवाजे खोलेगी जहां पहले सिर्फ दीवार थी। सख्त ख्वाहिश और खुशी के माहौल में रहें। आप कायनात की खुशहाली में खो जाएं। अपने चाहने वालों के साथ अपनी खुशी बांटें। आपका जोश, आपकी उम्मीद, आपकी खुशियां सब कुछ छो जाती हैं। और यही मैं तकरीबन हर वक्त करता हूं। अपने जोश के पीछे जाता हूं, अपनी मोहब्बत के पीछे जाता हूं, अपनी उम्मीद के पीछे जाता हूं, और ये मैं दिन के हर लम्हे करता हूं। हमारी जिंदगी का लुत्फ लो, क्योंकि जिंदगी बेमिसाल है, एक शानदार सफर है। आप एक नई जिंदगी, एक अलग जिंदगी जिएंगे, और लोग आपको देखकर पूछेंगे, तुम मुझसे अलग ऐसा क्या करते हो? सिर्फ एक ही बात अलग है, आप इस राज के साथ जीते हैं, और फिर आप वो सब कर सकते हैं, पा सकते हैं, बन सकते हैं जो लोगों के मुताबिक आपके लिए नामुमकिन था। हम एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं, एक ऐसा दौर जिसका आखिरी पड़ाव स्पेस नहीं होगा जैसा स्टार ट्रैक में कहा गया, बल्कि वो होगा दिमाग। याद रखें, हम इंसानी दिमाग की सलाहियत का सिर्फ 5% इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरी 100% इंसानी सलाहियत सही तालीम का ही नतीजा है। तो सोचें, ऐसी दुनिया जहां लोग अपनी मुकम्मल ज़हनी और जज्बाती सलाहियतें इस्तेमाल करते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। इम्कानात लामहदूद हैं। हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपने आप को मनचाही खूबियों के साथ देखें। हर मजहबी मतन यही कहता है। हर अजीम फलसफा, हर अजीम रहनुमा, माजी के तमाम औतार, उन तमाम अजीम लोगों का मुतालिया करें। आपने कई को इस प्रोग्राम में देखा है। आपको मालूम है, सब ने एक ही बात समझी, इस राज को समझना। अब आप भी समझें। जितना ज्यादा अमल में लाएंगे, उतना ही ज्यादा समझेंगे। अपनी जिंदगी के इस सफर में आप इस मोड़ तक पहुंचे हैं सिर्फ इसलिए
کہ آپ کے اندر کی آواز کہتی رہی خوش رہنا آپ کا حق ہے۔ آپ کی پیدائش صرف اس لیے ہوئی ہے کہ آپ دنیا کے لیے کچھ کر سکیں اور خود کو ثابت کر سکیں۔ آپ کی زندگی کے ہر وہ تجربے جو آپ کو ہوئے اور ہر لمحہ آپ کو اسی لمحے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہی وقت ہے جان لیں کہ آپ خود اپنے نصیب کے خالق ہیں۔ اب سوچیں اس راز کو جاننے کے بعد آپ کیا نہیں کر سکتے۔ اب سوچیں کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے، اس سنہرے موقع کا فائدہ کیسے اٹھائیں گے۔ آپ کا رقص کوئی اور نہیں کر سکتا، آپ کا گانا کوئی اور نہیں گا سکتا، آپ کی کہانی کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ آپ کون ہیں، کیا کریں گے، اس کا فیصلہ ابھی آپ کریں گے۔ آپ کے اندر ایک زبردست خوبی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ عظیم ہیں۔ چاہے آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہوا ہو، آپ بچے ہوں یا بوڑھے، پر جس لمحے آپ صحیح سوچنا شروع کریں گے، آپ کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو بیرونی طاقت سے کہیں بڑی ہے۔ وہ طاقت ظاہر ہونا شروع کرے گی۔ وہ آپ کی زندگی پر حاوی ہوگی، آپ کی رہنمائی کرے گی، آپ کو کھلائے گی، پہنائے گی، آپ کا راستہ دکھائے گی اور آپ کے وجود کو قائم رکھے گی۔ اگر آپ اسے ایسا کرنے دیں، اور اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں